Anyway, so today we'll be reading starting with primary open angle glaucoma. Okay. Uh, the major difference as I teach you about primary open angle is that how there were so many symptoms and signs starting from the second stage up onwards. Pupil mid dilated, extremely painful eye, nausea, vomiting, red eye, low vision, very high IOP, lots of things. And from chronic congestive stage, you could see cupping, this, that. So there were so many signs and also symptoms in angle closure glaucoma. That is a disease, if you've once seen a patient, you cannot miss it. You will always recognize it. Okay. The difference with primary open angle glaucoma is that it's a silent disease. It's so silent, by the time we can detect it on perimetry, 40% of the nerve fibers are already lost. Okay. So perimetry, which is one of the most diagnostic procedures that we can do to confirm that this patient has glaucoma, by the time we get changes on perimetry, 40% damage has already occurred. Okay. People are coming with newer modalities to diagnose it earlier and earlier, but right now these are the basic standards. Also, because none of the symptoms are very prominent, so patient will never really come and complain. Some very sensitive patients might start to feel that the visual field is compressing or all, but generally they come for some other complaint and we check their IOP and it is higher on the higher side, and then if we just see the fundus and we will notice cupping. So primary open angle glaucoma is a chronic, slowly progressive, very slowly. Bilateral optic neuropathy. Again, I have told you many times that if somebody asks you what is glaucoma, a good answer would be it's an optic neuropathy. Whether you remember anything else or not, a good answer would be optic neuropathy. A better answer would be with typical visual field changes. A better answer would be may or may not be associated with raised intraocular pressure. But primary open angle glaucoma does have raised intraocular pressure, but the angle is open. I was continuously telling you कैसे 10 degrees narrow angle, 0 angle, 20 degrees Schaefer's classification. Schaefer's classification में मैंने बताया था कि अगर 4 degree angle है तो वो 35 to 45 है या greater than 45 है, उसमें 4 structures दिखेंगे, फिर 3 structures, 2 structures, 1 and then closed angle, ठीक है, 0 degrees. Isme the angle is always open, but there is still raised IOP. That means if the IOP is raised, that means aqueous that is formed is not able to flow out. Okay. Glaucomatous cupping of the optic disc. In angle closure glaucoma, I had told you that cupping only starts in chronic congestive stage. In this, on presentation, we will see cupping. Okay. And there is visual field loss. Now I will be talking a lot about visual field in more detail later on, but I want you to have a general idea on what is visual field. So visual field can be spoken of in terms of visual field of one eye and visual field of both eyes. Okay. So if I just talk about my right eye, so visual field is all the area that I can see with my eye focusing in the primary position. So the primary position is straight ahead on the horizontal. Okay, that is the primary position. So this is my visual field. Now I would like all of you to see your visual field for the right eye by covering your left eye gently. Don't press it, just cover it with your with the palm of your hand. Okay, all of you belong to all. Yes. अच्छा चश्मा पहना चलो कोई. So now remove the hand and just see how your visual field increases. Did you appreciate that? With this, we could probably, I can see roughly till here. As soon as I remove the hand, I can see till here. This area entirely. So binocular visual field is much more than uniocular. If I tell you in exact terms, specificities of how much is a visual field, so visual field is 60 degrees superiorly, 60 degrees nasally, around 90 degrees inferiorly, and around 100 to 110 degrees temporally. Okay. Now for the PGs,
I want you to specifically know that many times when we ask why is the temporal visual field much greater than the nasal visual field. Okay, this is around 90 to 110 and this is only 60, around 75, sorry, and 90 to 100. This inferior is around 75. So this is only 60. So the most common answer that I receive is that the nasal bridge blocks our would block the nasal field, say for the right eye. Okay, so that's an acceptable answer and it is true to some extent. But it has been noticed that, say, if I was a Chinese and I didn't have a nasal bridge, still my nasal visual field would be lesser than the temporal. So that's something that you have to find out why. Okay, all right. So this is your visual field. We can plot the visual field. There are various methods going from very basic, which you might have done in physiology, which was Goldman, I think. What is that called? Goldman's perimeter? I don't know. तुम लोगों ने की आँख वाला लिस्टर पेरीमीटर होता है, आँख वाला किया है फिजियोलॉजी में? अच्छा. So if a patient comes to you, and I've told that often, and that patient has raised intraocular pressure, do you say, oh my goodness, now you have glaucoma, right? Or if a patient comes and they have cupping, so would you just jump ki, okay, this looks like glaucoma? No. There have to be specific criteria. Many times cupping can be physiological. Okay. How would you differentiate between glaucomatous cupping? Cupping means जो डिस्क है उसके बीच में एक कप होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था 0.2 to 0.3 रहता है रेशियो. 0.2 is to 0.1. अगर हम पूरे डिस्क को वर्टिकली हम देखते हैं, अगर पूरा डिस्क 1 है तो जो कप है वो उसके रेशियो से 0.2 या 0.3 ही रहता है. फिजियोलॉजिकल कपिंग काफी बड़े हो सकते हैं. I was told I have physiological cups of 0.8. But physiological cups will not increase in size. They will not be associated with visual field defects on perimetry and they will be absolutely symmetrical. ठीक है? Symmetrical होंगे. So how do you know, or what are the diagnostic criteria? So at least 2 of the first 3 signs must be present to make a diagnosis of primary open angle glaucoma. So first let us just talk about intraocular pressure. The intraocular pressure, you know, normal is 12 to 20 millimeters of Hg by Schiotz. If it is greater than 21 millimeters Hg on more than one occasion and preferably taken, measured at different times of the day. Why different times of the day? Because there is diurnal variation in intraocular pressure. कुछ लोग का सुबह बाइफेजिक राइज होता है, दिन में 2 बार बढ़ जाता है, कुछ लोग का सुबह बढ़ता है, कुछ लोग का शाम को बढ़ता है. सो प्रेफरेबल है कि आप उसको 2 बार अलग अलग टाइम पे किसी इंसान का मेजर करें. एक बार कूद के किसी का 22-23 आ रहा है तो ना बोल दें कि आपको ग्लोकोमा है. सेकेंड थिंग है exaggerated diurnal variation greater than 8 millimeters of Hg. What is diurnal variation? If we do phasing, what is phasing? हम अगर किसी नॉर्मल इंसान को एडमिट करके और हर 2-2 घंटे पे उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर दिन भर मेजर करें 24 घंटे में, तो हम देखेंगे कि उनका इंट्राओक्यूलर प्रेशर वेरी करता है बिटवीन जब मैक्सिमम था और मिनिमम. बट ये नॉर्मल लोगों में डायर्नल वेरिएशन इज ऑलवेज लेस देन 5 मिलीमीटर्स ऑफ Hg. मतलब अगर कभी 14 था और कभी 18 था, ऐसा नहीं होगा कि 14 है और 26 है ना. वो रेंज जो है डिफरेंस का वो 5 मिलीमीटर से कम ही रहेगा दोनों में डिफरेंस. ठीक है. सो एग्जैजरेटेड डायर्नल वेरिएशन अगर हो सकता है कि दोनों रीडिंग्स नॉर्मल, मतलब सपोजिंग एक पेशेंट है, हम कब करेंगे ये, है ना, द क्वेश्चन अराइजेज, ये हम कब करेंगे मैम. आपको एक पेशेंट है और आपको उसकी आंख में कपिंग मिल रही है, एसिमेट्रिकल कपिंग है, एक आंख में 0.6 है, एक में 0.4 है. ठीक है. और उसको फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की सपोजिंग. ठीक है. आपने उसका प्रेशर लिया, नॉर्मल आया 11. ठीक है, नॉर्मल है. आपने दोबारा लिया, 14 आया.
ठीक है। सो ऐसे पेशेंट को अगर हम एडमिट करके उसका फेजिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि नहीं, इसका डायनल वेरिएशन एक बार 11 आया था और एक बार 20 भी आया था। ठीक है, 20 तो नॉर्मल में आता है, बट दोनों में डिफरेंस 8 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा हो गया। तो ये हम लोग सोचेंगे कि दिस माइट बी अ ग्लोकोमेटस पेशेंट, इवन दो बोथ हिज आईओपी रीडिंग्स fall in the normal range. 11 is also normal and 20 is also normal. Okay? या difference in intraocular pressure of two eyes is greater than 5 millimeters of Hg. हम लोग की आंखें बहुत सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है, और दोनों आंख में कोई भी चीज मतलब सेम सेम सी मिलती है। ठीक है, अगर इसकी डिस्क इतनी बड़ी है तो उसकी भी इतनी बड़ी होगी। सो अगर हमको आईओपी का इतना, अगर इसका इसमें हम लोग जनरली मतलब जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर लेते हैं, सो वन आई में अगर 12 है तो दूसरे में 12 ही होगा, बहुत चेंज तो 13 होगा, 11 होगा, इससे ज़्यादा बहुत चेंज नहीं मिलता है फ्रैंकली। तो अगर डिफरेंस इन ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर ऑफ एच जी बिटवीन टू आईज मिल रहा है, देन दैट इज वेरी सस्पेक्ट। सो आईओपी तीन चीज़ें, greater than 21 millimeters on two occasions, preferably taken at different times of day, exaggerated diurnal variation greater than 8 millimeters, difference in IOP between the two eyes greater than 5 millimeters. फिर CD रेशियो पे आते हैं। CD रेशियो मैंने आप लोग को कहा था नॉर्मल जो होता है अराउंड 0.2 to 0.3 होता है। अगर CD रेशियो 0.5:1 या उससे ज़्यादा है किसी भी आंख में तो वो बहुत सस्पेक्ट है। ठीक है, कि ये ग्लोकोमेटस हो सकता है। दोनों आंख का अगर CD रेशियो में डिफरेंस 0.2 से ज़्यादा है, मतलब एक में 0.2 है और एक में 0.5 है, या तो वो भी बहुत सस्पेक्ट है, मतलब 0.2 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। Third point for diagnosis is visual field defects consistent with glaucomatous visual field defects. ये अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ग्लोकोमा में जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, और वो टिपिकल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें नर्व फाइबर्स जाते हैं और वो नर्व फाइबर्स विजन पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, ये नर्व फाइबर्स कौन सी लेयर में होते हैं? ये गैंग्लियन सेल लेयर जो होती है उसके एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, सो गैंग्लियन सेल लेयर के एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, ये जो नर्व फाइबर लेयर है इसका बहुत ही एक टिपिकल अरेंजमेंट रेटिना में होता है। तो जब इन नर्व फाइबर्स की डेथ होती है तो वो मतलब कह लो कि गुच्छों में दे डाई टुगेदर सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मतलब दीज विल डाई, और वेरी टिपिकल जो जिनकी डेथ होती है, नहीं कि एक की उधर डेथ हो गई एक की उधर, वो जो जिस अरेंजमेंट में जा रहे हैं सॉर्ट ऑफ लगभग उसी अरेंजमेंट में उनकी डेथ भी होती है, बिकॉज इट सीम्स सम आर मोर ससेप्टेबल। तो क्योंकि वैसी होती है तो हमको विजुअल फील्ड में जो नर्व फाइबर्स डेथ हो गई वहां पे सेंसेशन नहीं होगा, तो वही वाले एरिया में हमको विजुअल फील्ड इफेक्ट मिलेगा। तो बड़ा टिपिकल सा होता है जो अभी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमको नर्व फाइबर लेयर में रेड फ्री लाइट से डिफेक्ट्स मिलेंगे। सो डॉक्टर सोफिया विल अप्रिशिएट इट बिकॉज आई जस्ट मेड हर टेक द फंडस फोटोग्राफ ऑफ अ पेशेंट टू सी इफ वी कुड सी। क्या होता है ना कि हम अगर किसी, देखो नर्व फाइबर लेयर में डिफेक्ट हम डायरेक्टली मतलब ऑफ्थैल्मोस्कोप से देख के भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक तो उतनी देर देखना, पेशेंट आंख नहीं हिला रहा, ये सब थोड़ा सा इट्स टफर। अगर आपने फंडस फोटोग्राफ ले ली, ठीक है, अगर आपने फंडस फोटोग्राफ ले ली, आप आराम से फिर उस फोटोग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग को नर्व फाइबर्स के ऐसे ऐसे स्ट्राइएशंस दिखते हैं, जो नर्व फाइबर का अरेंजमेंट है वो दिखते हैं फंडस फोटोग्राफ में। बाय फंडस फोटोग्राफ आई मीन अ फोटो ऑफ द रेटिना टेकन थ्रू द प्यूपिल। ठीक है, हमें दिखते हैं, पूरा अरेंजमेंट ऐसे दिखता है, सारे नहीं दिखते पर थोड़े बहुत दिखते हैं इधर उधर वाले। अगर नर्व फाइबर की डेथ हो जाती है तो स्पेशली रेड फ्री फोटोग्राफ, मतलब एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, उसमें ना जहाँ पे नर्व फाइबर की डेथ होती है वो अजीब सा एक ब्लैक सा आपको दिखेगा, एकदम अलग से पहचान में आ जाता है। सो यू कैन कैच द डेथ ऑफ नर्व फाइबर डिफेक्ट। शुरू में बहुत पतला होता है, स्लिट डिफेक्ट, देन वेज डिफेक्ट। सो आई विल क्विकली रिवाइज। आप आईओपी के बेसिस में डायग्नोज कर सकते हैं, CD रेशियो के बेसिस में डायग्नोज कर सकते हैं, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट के बेसिस में। ठीक है,
etiology. It occurs in the 5th to 6th decade. वो हमने 4th to 5th decade बोला था. अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जनरली 40s में शुरू होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, और ये थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप 60s to 70s में स्टार्ट होता है. ठीक है. सो of course 5th to 6th decade would be 40s to 50s, right? And so open angle glaucoma is slightly in the older age group. I feel it could also be because इसमें कोई साइन सिम्टम रहते नहीं है, तो साइंस तो रहते हैं बहुत, सिम्टम नहीं होते हैं, तो मे बी it's caught at a later stage. It could be. It is equal in both sexes. May angle closure glaucoma had any sex predilection? Females. Very good. This is multifactorial. बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पेरेंट्स को ओपन एंगल ग्लोकोमा है, आपको ज़्यादा चांस है होगा. अगर आपको डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर है, आपको होने की ज़्यादा चांस है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है. ऑक्यूलर एसोसिएशंस में मायोप्स को ज़्यादा चांस है, जिनको रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इन सबको ज़्यादा चांस है. ठीक है. सो these are some of the etiologies. Pathogenesis. Now remember, the angle is open. There is no problem for the aqueous to reach the trabecular meshwork. ठीक है. But why is it not flowing out? It is simply because trabecular meshwork is like a छन्नी and frankly it is blocked. तो आप चाय डाल रहे हैं और मलाई गिर गई खूब सारी, अब आपकी चाय भी बाहर गिर गई क्योंकि वो मलाई ने ब्लॉक कर दिया आपकी छन्नी को, और आपकी चाय कप में जाने के बजाय इधर उधर गिर रही है. ठीक है. सो दैट वुड ओनली हैपन अगर आप चाय डालते जाए. अगर आपकी मलाई गिर गई छन्नी में, आप रुक भी सकते हैं एंड यू कैन वॉश द छन्नी. सो एनीवे, चेंजेस इन ट्रैबिक्युलर मेशवर्क. फॉल्टी कोलेजन. ट्रैबिक्युलर मेशवर्क इज मेड अप ऑफ कोलेजन. उसका कोलेजन फॉल्टी है. देयर इज सम थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स. एंड ये जो छन्नी के बीच में जो स्पेसेस है, इंटरट्रैबिक्युलर स्पेसेस, ये एकदम नैरो हो जाती हैं. सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज नैरोइंग ऑफ द इंटरट्रैबिक्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ फॉल्टी कोलेजन एंड थिकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? ट्रैबिक्युलर मेशवर्क के जस्ट पीछे पूरे गोल श्लेम्स कैनाल होती है. श्लेम्स कैनाल इज एक्चुअली अ फ्लूइड फिल्ड साइनस. ठीक है. उसमें कोई ऐसे सेप्टे नहीं होते. आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर दो फ्रैंकली. सो श्लेम्स कैनाल भी एकदम कोलैप्स हो जाती है. कोई चीज कोलैप्स है तो उसमें फ्लूइड जा नहीं पाएगा. एंड इंट्रास्क्लेरल चैनल्स का स्क्लेरोसिस हो जाता है, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वेसल वॉल यू कैन से. ठीक है. स्क्लेरोसिस इज दैट ओनली. सो दिस इज द पैथोजेनेसिस. इट्स ऑल थियोरेटिकल. you'll have to learn it. Symptoms. Now just look at the symptoms. There is nothing very mild eye ache, headache or eye ache. Mild headache and eye ache. Is this a very significant symptom? आजकल अगर अभी मैं आप लोग से हिस्ट्री लूँ तो 80% बच्चे बोलेंगे हाँ मैम आँख में दर्द होता रहता है, सर दर्द होता रहता है. आप लोग का ऑफकोर्स कारण अलग है क्योंकि आप लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं रात के 2 बजे तक, जब तक कि आपको फाइनली या तो तब भी नहीं सोते हैं. हाँ पढ़ते रहते हैं. इतना पढ़ाकू है, मतलब मोबाइल पे पढ़ते रहते हैं बुक्स डाउनलोड करके. क्या बोले, मतलब इतना नहीं पढ़ना चाहिए. So mild eye ache and headache is such a common symptom, like literally everyone has it in every age group. ठीक है. अब आपके पास कोई 50 years का आके कह रहा है हमको सर दर्द हो रहा है, हमको आंख में दर्द हो रहा है. ठीक है. So if the same person goes to psychiatry, they will start asking ना, नींद कैसी आई, पत्नी से झगड़ा तो नहीं होता है. They will start taking a detailed history like that. So but for us, if a 50-year-old, 60-year-old person comes, we have to be very alert. If you people come with eye ache and headache, I'll probably scold you and I will not do that. But I'll probably say इनका रिफ्रैक्शन कराओ, चश्मे का नंबर तो नहीं है. I'll ask about different history. But उस एज ग्रुप के लोग हैं, I will definitely get up to see कि उनका फंडस एक बार हम एक नजर देख लें. कपिंग तो नहीं है. सबसे इजी है, डायरेक्ट उठाओ एक बार देख लो. डिस्क देखना है हमको, बस एक बार डिस्क देख लो. डायलेट करने की भी जरूरत नहीं है, डिस्क ऐसे ही दिख जाती है. मे कंप्लेन ऑफ पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिन्यूशन ऑफ विजन. दे मे से कि हमारी नजर लग रहा है थोड़ी थोड़ी कम हो रही है.
वो भी फ्रैंकली बहुत कम लोग कहते हैं। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेस बायोपिक ग्लासेस। प्रेस बायोपिया आप लोग की पढ़ाई हो चुकी है। इट इज अ अकोमोडेशन एरर, ठीक है, इट्स नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर। प्रेस बायोपिया एज 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि बिकॉज ऑफ लेस अकोमोडेशन हम पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। सो अकोमोडेशन होता किससे है? मुंह धो के आओ। तो फिर कम से कम हाथ रख लिया करो, मुझे पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाने की क्या जरूरत है? तुमको इतना बोरिंग लग रहा है मेरा लेक्चर? मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, पर मैं एटलीस्ट जमाई तो नहीं ले रही हूँ। छुप के नीचे झुक के छुप के जमाई लेना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। जमाई लेना मतलब मेरा लेक्चर बोरिंग लग रहा है। अपना तुम नाम बताओ, मैं तुम्हारे 2 मार्क्स काटूंगी जमाई लेने के लिए। नाम बताओ। है? है? सिद्धम, बैठ जाओ। अब तुमने जमाई ली तो तुम देखना, कोई भी इनफैक्ट nobody is supposed to, if you want to yawn, है ना, please hide your face somewhere and then yawn and then come back again looking very fresh and interested in my lecture. So why is there frequent change of press biopic glasses? Remember, accommodation के लिए ciliary muscles इन्वॉल्व होती हैं, और ये जो क्रॉनिकली रेज्ड प्रेशर रहता है ना, उसकी वजह से सिलरी मसल्स कह लो वीक हो जाती हैं, मतलब दे कैन नॉट फंक्शन वेरी वेल। तो ऐसे ही हम लोग के प्रेस बायोपिक ग्लासेस हर 2.5 से 5 साल पे चेंज होते हैं, इसमें थोड़ा जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेस बायोपिक ग्लासेस इज अ सिम्टम ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। ये पीजी में इजी क्वेश्चन में आता है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, और बहुत फेवरेट है। आई से वो लोग अब पता नहीं, अब तो पता नहीं किस लेवल के पूछने लगे, मैं भी नहीं आंसर कर पाती, बट हम लोग के जमाने में यही सब क्वेश्चंस आते थे। पेशेंट में नोटिस अ डिफेक्ट इन द विजुअल फील्ड। फ्रैंकली यू नो, अगर विजुअल फील्ड धीरे 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 ऐसे साइड से कम हो रही है तो बहुत कम लोग को पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, ड्राइव करते हैं या कुछ करते हैं, उनको दे स्टार्ट फीलिंग कि हमको अब इधर से गाड़ी आती है दिखती नहीं है, ठीक है। सो दे मे नोटिस दैट। डोंट टॉक, डोंट टॉक, डोंट टॉक। साइंस, डोंट टॉक। आज टुडे ना तुम लोग यार चेंज कर करके, पहले ये बात कर रहा था एक बार, इनफैक्ट हर बार, आज सेंटर वाला सेक्शन बात कर रहा है लगातार, वही एक अच्छा बचा है। तुम लोग अपना रोल नंबर अलग से देना, मैं तुम लोग को हाई मार्क्स दूंगी। साइंस, अब आप लोग डिफरेंस देखिए। विजुअल एक्विटी नॉर्मल, कॉर्निया नॉर्मल, एसी डेप्थ नॉर्मल, प्यूपिलरी रिएक्शन नॉर्मल अंटिल लेट स्टेजेस। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और एक पेशेंट आया 50 से 60 साल का, मेरे पीजी, और उसने बोला हल्का सर दर्द और आंख में दर्द होता है, हाँ आप चश्मे की जांच करा लीजिए, आपका पास का चश्मा बदल रहा है। आपने टॉर्च से लेकिन देख लिया, क्योंकि सामने डॉक्टर चेतन बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने देखा कि नहीं, तो आपने टॉर्च से देख लिया, तो आपको लग रहा है हाँ नजर तो ठीक ही है, पास का थोड़ा सा कम है। कॉर्निया देख लिया आपने, एसी डेप्थ देख लिया, प्यूपिलरी रिएक्शन, ब्रिस्क, हाँ हाँ भेज दो भेज दो। आपने उठ के डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप अपना उठा के और उसका डिस्क नहीं देखा। You will miss a case of open angle glaucoma. Any patient who complains of anything around here, halka dard ye wo, any mild also, get up and look at the disc. For that 30 seconds, they will thank you later. IOP raised with increased diurnal variation. So, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में विजुअल एक्विटी बहुत कम हो जाती है, फिंगर काउंट। कॉर्निया हेजी इनसेंसिटिव हो जाता है, एसी एब्सोल्युटली शैलो, लगता है जैसे आइरिस और कॉर्निया टच कर रहा है। प्यूपिलरी रिएक्शन एब्सेंट होता है, प्यूपिल मिड डायलेटेड एंड फिक्स्ड हो जाता है, एकदम अजीब ही पिक्चर है उसकी, है ना। इसमें सब चीज नॉर्मल है। लेकिन अगर आप फिर हमारे पीजीज ने डिस्क देखी तो उनको थोड़ा सा लगा रही तो कपिंग है, तो उन्होंने, लेकिन आप लोग तो पहले ही एनसीटी कर लेते हैं, इन्होंने एनसीटी भी करा ली, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, ठीक है, दैट इज एनसीटी। सो आईओपी देखा तो डायनल वेरिएशन क्या, आईओपी बढ़ा हुआ मिल सकता है,
ठीक है. Now this is a photograph of the normal disc. I have put the photograph on the left to show कि जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है रेटिना पे, वो फिर एरो आप देखिए, वो जो गोल सा हिस्सा है वो एरिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क है. अगर हम उसी को, somebody is talking है ना, डोंट इरिटेट मी, अगर हम उसी को सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा. जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है वो सामने से ऑप्टिक डिस्क ऐसे दिखेगी. उसके टेम्पोरल साइड में हमको मैक्यूला दिखेगा, विच इज द एरिया फ्रॉम वेयर वी सी मोस्ट क्लियरली. एंड जो ब्लड वेसल्स हैं, टेम्पोरल ब्लड वेसल्स, नेजल उधर जा रहे हैं जो दिख नहीं रहे इस फोटो में बहुत अच्छे से, टेम्पोरल दिख रहे हैं. टेम्पोरल ब्लड वेसल्स arch around the macula. Okay, veins are thicker than arteries by a ratio of 3:2. ये normal disc है. On the left side you can see the CD ratio. चलो दक्ष, तुमको बोलने का बहुत मन कर रहा था, खड़े हो जाओ. जो लेफ्ट वाली फोटोग्राफ है, इन योर जजमेंट, एक तो पहले ये बताओ, हम CD रेशियो वर्टिकली देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली देखते हैं. एक्सीलेंट, वेरी गुड. सो तुम्हारे हिसाब से इस पेशेंट का CD रेशियो क्या है? पॉइंट 3:1 ऐसे बोलते हैं. 0.3:1. ठीक है. इफ ही हैड सेड 0.2:1 मैं लगभग वो भी मान लेती. 0.3 भी करेक्ट है. अगर ये इसको 0.7:1 हुआ तो फिर लगता क्या कर रहे हो तुम. बट ऐसे होता है. सिट डाउन. yesterday DC Gupta sir called me and he said आप ये पेशेंट फाइल देखिए. सो आई सॉ द पेशेंट फाइल. उसमें डॉक्टर ने CD रेशियो नहीं, मैंने इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो शुरू के 2 पेजेस थे मैंने देखे, मैंने सारे पेजेस नहीं देखे थे. ही सेड आप पेशेंट एक बार देख लीजिए. सो आई सॉ द पेशेंट and I saw the fundus, and frankly उसका asymmetry था between the two eyes. He was a very young man, he was only 34. asymmetry था, एक आंख में कप दिख ही नहीं रहा था, which is normal. It is, there are some patients जिसमें कप नहीं, people जिसमें कप नहीं दिखता है. ठीक है, हल्का सा वहां पे बस एक डिप्रेशन था. दूसरी आई में उसका कप was roughly 0.3 के आसपास, I would say. Then sir ने कहा कि he asked me what are the fundus findings. He hadn't, so I just told whatever I found. So he said ये देखिए, and some doctor had seen and written the cup of at least DI जिसमें था as 0.6 or 0.7:1. मतलब 0.7 would be कि majority तो कप ही है, बस 0.3 बचा न्यूरोरेटिनल रिम, है ना. So anyway, शुभ, जय शुभ, खड़े हो जाओ. पहले तो अच्छा, इसमें तो लेबल्ड है तो आई कांट आस्क यू. जो गैंग्लियन लेयर के जो एक्सॉन्स हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं जो जाते हैं, वो पूरी डिस्क में, पूरी ऑप्टिक नर्व में ऐसे नहीं जाते हैं, वो बाहर के हिस्से से ही जाते हैं. बीच में ये कप वाला हिस्सा रहता है. ठीक है, तो जो बाहर के हिस्से से जाते हैं उसको क्या कहते हैं शुभ? रिम तो यहाँ लिखा है, तुम पूरा नाम बताओ मुझे. कितने सारे शुभ है यहाँ पे? न्यूरोरेटिनल रिम कहते हैं, करेक्ट. अब तुम इसमें बताओ, इस पेशेंट में तुमको CD रेशियो क्या लग रहा है? प्लीज लुक एट इट वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली. पॉइंट 0.8:1. ओके, 0.8. चलो सिट डाउन. ठीक है, दैट्स हिज. उसको लग रहा है 0.8. तो 0.8 मतलब तुमको लग रहा है कि 80% इसका, अगर हम इसको पूरे को 1 माने तो ये जो है ये 80% है उसका. बेटा ऊपर नीचे अगर हम न्यूरोरेटिनल रिम देख ले तो मतलब 1 ही 1 है वो. अच्छा, लेट मी आस्क समबडी एल्स. यस यू, बताओ बेटा, आपका क्या जजमेंट लग रहा है? 0.6:1. ओके, एनीवन एल्स? सोफिया? 0.4:1. Let's get an average. है ना. सी, इट इज ऑल सब्जेक्टिव. व्हाई एम आई आस्किंग सो मेनी पीपल? सबको मालूम है हमको टोटल का रेशियो बताना है कप का, है ना. इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. लेकिन सब लोग आस पास है एक्सेप्ट फॉर शुभ.
who was wildly out, but I would say probably it is half. So 0.5. So 0.6, 0.4, 0.5, roughly the people who will examine this eye will agree. आप लोग इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि देर इज अ काइंड ऑफ अ नॉच दैट यू सी इन द इंफीरियर पार्ट. मतलब पूरा तो एनलार्ज्ड है लेकिन नीचे एक जगह थोड़ा और ज्यादा एनलार्ज लग रहा है. ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके. ओके, दिस इज अ बोरिंग पार्ट. वन बोरिंग स्लाइड. पैथोजेनेसिस ऑफ कपिंग एंड ऑप्टिक एट्रोफी. क्यों होता है ग्लोकोमा में कपिंग और क्यों होता है ऑप्टिक एट्रोफी? एक मैकेनिकल फैक्टर माना जाता है, एक वैस्कुलर फैक्टर. इन दोनों में से ज्यादा एक्सेप्टेड वैस्कुलर थियरी है. ओके, द वैस्कुलर थियरी इज मच मोर एक्सेप्टेड. सो द मैकेनिकल थियरी स्टेट्स दैट बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा है आंख में, तो इट फोर्सेस द लैमिना क्रिब्रोसा बैकवर्ड्स. सो यू विल आस्क मी, मैम व्हाट इज द लैमिना क्रिब्रोसा? सो स्क्लेरा है ना पीछे, अब उसमें से गैंग्लियन फाइबर्स, तो स्क्लेरा में ऐसे छोटे 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 ओपनिंग्स रहते हैं, वो ओपनिंग्स को हम लैमिना क्रिब्रोसा कहते हैं. उन्हीं के थ्रू ये नर्व फाइबर्स बाहर जाते हैं. सो इसमें कहना है कि हाई प्रेशर फोर्सेस द लैमिना क्रिब्रोसा बैकवर्ड्स एंड कॉजेज डेथ ऑफ न्यूरॉन्स बाय डायरेक्ट कंप्रेशन. ठीक है. सेकेंड इज, डोंट टॉक, is the vascular factor. उसमें कहना है कि increased IOP causes mechanical compression of vessels at the lamina cribrosa. Remember, जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही है, उसके साइड से बहुत सारी आर्टरीज आ रही है सब. ठीक है. सो एनीवे इनका कहना है कि मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ वेसल्स एट द लैमिना क्रिब्रोसा. अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑप्टिक नर्व हेड में इस्कीमिया हो जाएगा. ठीक है, लेस ब्लड सप्लाई इज इस्कीमिया. अगर इस्कीमिया होगा, अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो एक्सोनल फ्लो, किसी भी एक्सॉन में आप लोगों ने एक्सोनल फ्लो को पढ़ा होगा. ठीक है. सो एक्सोनल फ्लो कम हो जाएगा जिसकी वजह से देयर विल बी अट्रोफी ऑफ एक्सॉन्स. एंड वंस देयर इज अट्रोफी ऑफ एक्सॉन्स, जब नर्व फाइबर लेयर की अट्रोफी हो रही है तो लैमिना क्रिब्रोसा का सपोर्ट कम हो रहा है, सो इट बिकम्स वीक एंड बल्जेस बैक. ठीक है. सो वैस्कुलर थियरी इज मोर सपोर्टेड. हाई आईओपी compresses the blood vessels, ischemia of optic nerve head, death of axons, and lamina cribrosa becomes weak and bulges backwards. Now comes to interesting part. आप लोगों को अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में क्वेश्चन आता है, and if I set the question paper, I've told you many times, open angle glaucoma, corneal ulcer, anterior uveitis and angle closure glaucoma. These are my very favorite long questions. Having told you that, तुम लोग इतने बदमाश हो, मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को कुछ आरडी वारडी दे दूंगी. आरडी और स्क्विंट से. आरडी इज रेटिनल डिटैचमेंट और एक स्क्विंट से दे देंगे क्वेश्चन. एग्जामिन, हाउ वुड यू एग्जामिन अ केस ऑफ third nerve paralysis or something like that. Anyway, so I wish I could do that, but फिर हम ही लोग को पास कराना पड़ता है, इसलिए हम लोग इजी क्वेश्चंस देते हैं. काश तुम लोग समझ पाते कि तुम्हारे टीचर्स तुम लोग को पास कराने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. इतने बच्चे एग्जाम में, मैम मुझे ना प्रैक्टिकल में फेल कर दिया. अरे तुमको फेल नहीं किया, तुमको वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग ने कितनी मेहनत की है. मतलब कभी कोई टीचर किसी को फेल नहीं करता, मैंने तो आज तक नहीं देखा है. एक बार मेडिसिन में पीजीज को फेल किया था, पर वो अलग बात है. कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है. आप लोग खुद को फेल करते हैं. एकदम ये लिख लीजिए. मैम हम लोग को ना, मुझे थियोरी में 20 में 17 मिला, मैम 3 मार्क्स से फेल कर दिया. तुमको मिल तो 4 रहा था, एक टीचर ने किसी तरह बढ़ा के तुमको 10 में से या 4 टोटल मिल रहा था, 2 मिल रहा था एक पेपर में 2, एक ने बढ़ा के 17 किया कि हो सकता है दूसरे पेपर में उसका 13 हो, लेकिन उस वाले ने भी बढ़ा के कुछ, मतलब बहुत, यू कांट इमेजिन हम लोग कैसे कैसे आंसर्स पे मार्क्स भी दे देते हैं, जहाँ पे मन करता है 0 दे दो, नेगेटिव में इनफैक्ट. एनीवे चलो. सो ग्लोकोमेटिस जो चेंजेस, हाँ, तो व्हाट आई वाज एक्चुअली सेइंग वाज कि आप लोग का क्वेश्चन जो ओपन एंगल ग्लोकोमा में आता है वो आता है राइट द, बिकॉज अगर मैं सिर्फ ओपन एंगल ग्लोकोमा दे दूं या कोई भी दे दूं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट बहुत लंबा है सब चीज़. ठीक है. तो हम आप लोग को कुछ ऐसे देंगे कि राइट द डिस्क एंड फील्ड चेंजेस
and manage. खड़े हो जाओ, खड़े तुम ही खड़े रहो. Field and disc changes. He was yawning. You can't yawn in my class, please. Field and disc changes and management of open angle glaucoma. ठीक है, तो डिस्क चेंजेस ये हैं. आप लोग भी ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोग देखते हैं. तो अर्ली डिस्क चेंजेस क्या है? कपिंग स्टार्ट्स एज फोकल एनलार्जमेंट ऑफ इंफीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट. यू आर फ्री टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ माई स्लाइड्स. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक देम. सो कपिंग शुरू में मैंने इसीलिए उस फोटोग्राफ में दिखाया था कि टोटल तो कपिंग थी. बैठ जाओ. लेकिन इंफीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में थोड़ी कपिंग स्टार्ट हो रही है. Bayoneting sign. What is bayoneting sign? There are only photographs. I should have finished this lecture if that guy was not so. And all I don't know what my PGs and Ekta were doing. कहाँ गया भाई वो? अरे did I? या दिस इज द नाउ सी. ये इसमें ना बहुत ज़्यादा कपिंग है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. दिस इज अराउंड 0.9. इट्स अ डायग्राम, इट्स नॉट इवन अ फोटोग्राफ. ठीक है, नीचे इन लोगों ने इसको दूसरे मतलब ये तो आप अगर सामने से देख रहे हैं. ठीक है, क्या हम लोगों को अंदर ऐसे कपिंग दिखती है? हमें दिखती है. आप कोई चीज़ एक आँख से देखें ना, जैसे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से, तो हमको डेप्थ परसेप्शन खत्म हो जाता है. वी नीड 2 eyes for depth perception. Okay, if you want to check, just close your one eye and try to thread a needle. You will find it next to impossible. You need that depth perception. और try to take 2 very fine needles and उनका टिप टच कराने की कोशिश करो, दोनों आँख खोल के और एक आँख बंद करके. You will find it very difficult. ठीक है. So anyway, ये जो है इसको अगर हम ऐसे करके देखें ना, यू कैन सी दिस का, यही है रेटिना है पूरी. सेम चीज ये रेटिना है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये. नाउ यहाँ से ऑप्टिक नर्व ये है. ऑप्टिक नर्व से ब्लड वेसल्स आते हैं. कपिंग जो होती है ना, इसका जो एज है, यू कैन इमेजिन कि इट्स लाइक अ कप ओनली, लिटिल बिट ओवरहैंगिंग एज. तो जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं वो पहले ऐसे चले जाते हैं, फिर वो ऐसे आते हैं और फिर यहाँ से सरफेस पे जाते हैं. ठीक है, तो कोई सामने से देख रहा है तो उसको ये ब्लड वेसल का हिस्सा दिखेगा. फिर ये जो अंदर चला जा रहा है ये नहीं दिखेगा और ये वाला दिखेगा. तो उसको ये दिखेगा और यहाँ पे ये दिखेगा. यहाँ पे लगेगा जैसे कट गया है हिस्सा. अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर, तो सॉर्ट ऑफ दिस इज bayoneting लिटिल बिट. ठीक है, हियर यू कैन सी मे बी bayoneting sign. So what is a bayonet? Does anyone know what is a bayonet? Anyone knows? I'm an army officer's daughter. I know. A bayonet is a gun. I hope I'm right though. जिसके आगे वो छुरी लगी रहती है. जब soldiers they run out of ammunition, they don't give up. फिर hand to hand combat में बात आ जाती है. तो वो जो खुकरी या जो भी नाइफ लगी रहती है, then they fight with that. Okay. So that's a bayonet. So bayoneting sign क्यों कहते हैं? क्योंकि छुरी, फिर ऐसे, छुरी नहीं बोलना चाहिए, नाइफ बोलना चाहिए. नाइफ, फिर ऐसे, and then gun का barrel. Okay? So do you see the double angulation? So if somebody asks you what is bayoneting sign, it is the double angulation of the blood vessels as they traverse the cup and come to the surface of the retina. Okay? It is the double angulation of blood vessels. एरिया ऑफ कपिंग इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पैलर. कई बार आपको जो पेल एरिया है पूरा, पीजीज आप लोग के लिए खास करके, आपको लगेगा इतना बड़ा कप है, लेकिन आप देखिए कि ब्लड वेसल बेंड कहाँ से हो रहा है. ब्लड वेसल जहाँ से बेंड हो रहा है, एक्चुअली कपिंग वहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो कई बार आप देखेंगे कि पैलर तो यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन ब्लड वेसल बेंड यहाँ से हो रहा है. सो जहाँ से बेंड हो रहा है वो कप हमें ध्यान में देना है, नॉट फ्रॉम द पैलर. थिनिंग ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम. अगर कप बढ़ेगा तो न्यूरोरेटिनल रिम जो एक्सॉन्स का एरिया है वो नैरो होगा. सो थिनिंग ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम.
नेजल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो जनरली ऑप्टिक डिस्क के सेंटर से आते हैं, यहां आप देखेंगे कि सारे नेजली शिफ्टेड है. These are very important, okay? I would prefer all of you write. Splinter hemorrhages at the disc margin. डिस्क के मार्जिन में स्प्लिंटर क्या होता है, जो हम लोग को बांस से उंगली में जो घुस जाता है छोटा सा, उसको स्प्लिंटर कहते हैं. तो उसी तरह की पतली पतली हेमरेजेस मिलेंगी एट द डिस्क मार्जिन. बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर वेसल्स. I'll show you this in a photograph. What is bearing of circumlinear vessels? And progressive enlargement and deepening of the cup with loss of neural tissue. Progressive enlargement and deepening of the cup with loss of neural tissue. मैं बता ही देती हूँ bearing of circumlinear vessels. जब कप छोटा होता है और इतनी चौड़ी ऑरेंज कलर की न्यूरोरेटिनल रिम है, तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स उस न्यूरोरेटिनल रिम में ट्रैवर्स कर रहे हैं. जब कप बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब अगेंस्ट दैट वाइट बैकग्राउंड आपको रेड कलर का ब्लड वेसल दिखेगा जो जा रहा है. तो जो ब्लड वेसल पहले न्यूरोरेटिनल रिम में था, अब वो कप की एरिया में आ रहा है, क्योंकि कप बहुत एक्सपैंड हो गया है, ठीक है, एनलार्ज हो गया रादर. सो वो क्योंकि एक्सपोज हो गया है ब्लड वेसल, तो उसको कहते हैं बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर वेसल्स. There was a boy who's not paying attention. Yes, you. तुमको मैंने, तुम हंस रहे थे, फिर अब तुम देख नहीं रहे हो. कितनी बार तुमको एक क्लास में उठाया? There was another somebody who's not. Anyway, चलो तुम खड़े हो जाओ. हाँ, तुम हंस नहीं रहे हो, क्या बात है? अच्छा नहीं लग रहा है क्लास? नींद आ रही है? नहीं. तुम इसमें मुझे क्या क्या तुमको डिस्क चेंजेस दिख रहे हैं बताओ. पहले तो बताओ कौन सी वाली तुमको अब नॉर्मल डिस्क लग रही है, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली अब नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है बेटा? कौन सी नॉर्मल डिस्क है, चलो ये बता दो. तुम सुन नहीं रहे थे ना कुछ भी, तो ठीक है. तो अब नीचे वाली जो अब नॉर्मल है, उसमें क्या क्या अब नॉर्मैलिटी है बताओ, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया. हेल्प करो उसको, हेल्प करो आसपास वाले, बताओ उसको, प्रॉम्प्ट करो. चलो बता रहा है वो, यहां तक मुझे सुनाई दे रहा है. सीडी रेशियो बढ़ गया, सीडी रेशियो बढ़ गया, यहां तक मुझे सुनाई. बोलो कितना है सीडी रेशियो? 9 मतलब बेटा, 9 मतलब सब टोटल, मतलब कि डिस्क अगर 1 है तो 9 मतलब कितनी पतली सी न्यूरोरेटिनल, इतनी चौड़ी न्यूरोरेटिनल रिम दिख रही है. कितना है? 0.5 है, ठीक है. तो एक अबनॉर्मैलिटी तुमको दिख रही है, सीडी रेशियो बढ़ा है. और कुछ दिख रहा है? ठीक से प्रॉम्प्ट करो. तुम लोग धीरे धीरे बोल रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है. बैठ जाओ. कौन बच्चा बताएगा? वॉलंटियर. एक और साइन यहाँ पे दिख रहा है, बेयोनेटिंग साइन मिल रहा है. वेरी गुड. फ्यू गर्ल्स फ्रॉम हियर टोल्ड. एक्सीलेंट. इसमें तो ओफो, मैंने लेबल ही कर दिया है. इंफीरियर नॉचिंग दिख रही है आपको. इंफीरियर आप लोग को दिखा, एक पूरा एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर एक अलग से नॉचिंग दिख रही है, ठीक है. बेयोनेटिंग साइन दिख रहा है. नेजल शिफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें दिख रहा है. आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बीच से नहीं आके साइड से आ रहे हैं. कपिंग दिख ही रही है. बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर वेसल्स दिख रहा है, जो कि मैंने मैं ये सारी लेबलिंग अब हटा दूंगी. बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर वेसल्स आप देख रहे हैं, वो जो ब्लड वेसल है वो जरूर जब अगर कप छोटा रहा होगा तो वो न्यूरोरेटिनल रिम में अब नहीं है. और थिनिंग ऑफ द न्यूरोरेटिनल रिम मिल रहा है. सो मेनी साइंस. इस फोटोग्राफ में स्प्लिंटर हेमरेज दिख रही है, कपिंग भी दिख रही है, एक इंफीरियर नॉच टाइप का लग रहा है. एनीवे, इस फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है हाउ द ब्लड वेसल्स आर बेंडिंग एट द मार्जिन फ्रॉम वेयर द कपिंग इज स्टार्टिंग. आपको दिख रहे हैं वो सब बेंड हो रहे हैं वहां पे, ठीक है. ओ लेट मी एंड द क्लास देन.